try to understand the basic understanding about the annealing process, right? In the annealing process, we try to understand about the process annealing process, then stress relieving process, right? Full annealing process, and we also try to understand the basic perspective of that, and in what temperature range they are performing the various kind of the heat treatment on the steel. So the above all discussion, which is basically which with the correlations with the स्टील, राइट? अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की, वो एक ही पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग स्टील के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टील के ऊपर हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करने की जो वजह है वो क्या चीज़ है, राइट? वो परफॉर्म करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो वो चीज़ जो है वो हमें बेसिकली हम लोग वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस which used with a purpose with the purpose of the bulk and the surface treatment. Second, there are the various heat treatment processing, which is the annealing, normalizing, hardening, tempering, hardenabilities, right? So we just try to understand that the heat treatment of the steel, we have noted that how the TTT diagram, right? In the yesterday's lecture, we tried to understand about the time temperature transformations diagram. With the spending of the times and the different temperature range, the phase transformations of the steel are observed, and the CCT, which is the critical cooling transformations diagram, can help to design the heat treatment, to design the microstructure of the steel, and hence the engineers of the properties. In some cases, the gradations in the properties may be desired, which is usually from the surface to the interior, a hard surface with a ductile, tough interior, and the bulk. In general, three kind of the heat treatments are: first, which is the thermal heat treatment with the applications of the heat, right? Then the mechanical working, and the third, which is the chemical, which is the alterations of the compositions. हम लोग उसके जो कंपोजिशन है, उसके अंदर जो एलाइंग एलिमेंट्स है, उसको चेंज करके जो है वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. A combination of these treatments are also possible, which is the thermomechanical treatment and thermochemical process. मैकेनिकल को थर्मल के साथ रिलेशंस किया है और थर्मल को केमिकल के साथ रिलेट किया है, राइट? द ट्रीटमेंट इज मे अफेक्ट द होल सैंपल, द ट्रीटमेंट विच इज मे अफेक्ट द होल सैंपल or only the surface, right? A typical industrial treatment cycle is maybe complicated with many steps, right? So अगर हम लोग हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्म the properties in the bulk or transfer the properties in the surface. There are the combinations of the three types of the heat treatment process. The first, which is the thermal heat treatment process, second, which is the mechanical heat treatment process, and third, which is the chemical heat treatment process. और ये दोनों को कंबाइन करके यानी आपका थर्मोमैकेनिकल हो सकता है और थर्मोकेमिकल भी हो सकता है, राइट? ए ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट. कभी कभी आपको क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं. ए ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट इज पॉसिबल्स आर गिवन बिलो. Many more specialized treatment or the combination of these are possible. इसके जो है काफ़ी सारे combinations जो है वो possible है. So the heat treatment which is classified broadly in two categories. Suppose either you have to change the bulk properties of your metal, यानी आप जो है जो metal है उसके पूरी प्रॉपर्टी जो है बल्क में राइट चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसकी सरफेस प्रॉपर्टी जो टॉप सरफेस है उसकी ही प्रॉपर्टी जो है वो अल्टर करना चाहते हैं, राइट? अगर बल्क प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बल्क प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिकली तीन प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट विच इज़ एनेलिंग, सेकेंड विच इज़ नॉर्मलाइजिंग, एंड थर्ड विच इज़ हार्डनिंग और टेम्परिंग, राइट?
the annealing which is further classified as a full annealing, then recrystallization annealing, then stress relief annealing एंड स्पेरोडाइजिंग एनेलिंग. जो स्पेरोडाइजिंग और फुल एनेलिंग जो है वो हमने कल डिस्कस किया था, राइट. देन द सेकेंड विच इज़ द नॉर्मलाइजिंग एनेलिंग, राइट. देन थर्ड विच इज़ द हार्डनिंग एंड टेम्परिंग. सो हार्डनिंग और टेम्परिंग के साथ साथ इसके साथ दो प्रोसेस और जुड़ जाती, दैट इज़ द मार टेम्परिंग और ऑस टेम्परिंग. वो स्पेसिफिकली ये जो दो क्लासिफिकेशंस है, ये दो क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली जो है वो मार टेम्परिंग और ऑस टेम्परिंग, वो स्टील की फेज के ऊपर से उसके नाम जो है वो डिराइव किए गए हैं. अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन की दूसरी पहलू को देखने की कोशिश कर रहे हैं. द हीट ट्रीटमेंट फॉर द surface alterations, right? The heat treatment for changing of the surface alterations, which is further classified into the two categories. The first, which is the thermal, and second, which is the thermochemical. The first, which is the thermal, and second, which is the thermochemical. तो फर्स्ट की बात करें तो थर्मल प्रोसेसेस के अंदर जो है वो किस तरीके से थर्मल को यूज़ करके, हीट को यूज़ करके स्टील की आप जो है वो सरफेस प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, विच इज़ इंक्लूड एज ए फ्लैम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, लेज़र हार्डनिंग एंड इलेक्ट्रोबीम. सो ये जो प्रोसेस है सारी, जैसे आपका फ्लैम हार्डनिंग हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, लेज़र हार्डनिंग हो गया, राइट, एंड इलेक्ट्रोबीम, उससे जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को आप अल्टर कर सकते हैं. देन द सेकेंड क्लासिफिकेशंस which is based on the thermochemical. So in the thermochemical there is a carburizing, then nitriding and carbonitriding. ये जो प्रोसेस है वो केमिकल को यूज़ करके जो है, थर्मल और केमिकल दोनों को रिएक्शन करके जो है वो सरफेस प्रॉपर्टीज़ की जो है वो ऑल्ट्रेशंस किया जाता है, राइट. सो नाउ वी ट्राई टू मूव फॉरवर्ड्स विद दी अनदर डिटेल्स, राइट. सो अगर हम इसको पहलू को और समझने की कोशिश करें तो हीट ट्रीटमेंट को, द रेंज ऑफ द टेम्परेचर वेयर द एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड द स्पेरोडाइजिंग द ट्रीटमेंट आर कैरिड आउट इन हाइपो एंड हाइपर यूटेक्टेड ऑफ द स्टील. यानी अब हाइपर और हाइपो यूटेक्टेड जो है वो आपको पता है, राइट. जिस स्टील के अंदर द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज in the range of 0 to 0.8, which is called as a hypoeutectoid steel, and second in which the percentage of the carbon which is from 0.8 to 2%, right, maximum 2%, that type of the steel which is carried out as a hyper-eutected steel. The details are in the coming slides, right. अगर आप देखोगे तो दो जो है वो यहाँ पे आपको ग्राफ के अंदर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपको अभी दिख रहा है, दैट इज़ दी टेम्परेचर रेंज, राइट. तो आप देखोगे कि एक आपके पास ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है दैट इज़ द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन एट द टेम्परेचर ऑफ द 723 डिग्री सेल्सियस, राइट. और दूसरा जो आपको लाइन दिख रहा है वो अपर क्रिटिकल वाला जो रेड लाइन आपको दिख रहा है दैट इज़ द 910 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब आप देखोगे कि जो आपके पास एनेलिंग प्रोसेस है वो एनेलिंग प्रोसेस बेसिकली एनेलिंग के अंदर देर आर द 4 टाइप्स ऑफ एनेलिंग प्रोसेस: फुल एनेलिंग प्रोसेस, स्ट्रेस रिलीविंग एनेलिंग प्रोसेस, रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग प्रोसेस और आप क्या स्पेरोडाइजिंग एनेलिंग प्रोसेस. तो आप उसमें से फुल एनेलिंग को जो है वो निकाल दीजिए, बाकी के सारे यानी स्पेरोडाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड स्ट्रेस रिलीव एनेलिंग जो है वो बेसिकली वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के नीचे की जो टेम्परेचर रेंज है उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, राइट. अब उसमें से आप दो पार्ट करिए कि जिसके जो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है उसके अंदर जो प्रोसेस की जाती है दैट इज़ द स्पेरोडाइजिंग, राइट. आप देखोगे कि 0.8% के जो लेफ्ट साइड के आपको दिख रहा है, यानी वो जो प्रोसेस वो उस टाइप के स्टील को जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज़ limit up to the 0.8% and we try to hit up to the 723 degree Celsius, that process which is known as a sperodizing. When in hypereutectoid steel where the percentage of the carbon which is 0.8 to 2%, and in that conditions you try to increase the temperature until the 723 degree Celsius, that type of the heat treatment process which is called as a stress relieving process. और
ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन है वो काफ़ी ये दोनों से कम टेम्परेचर रेंज के ऊपर जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे इसका जो पीछे इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज़ है, वो सिर्फ क्रिस्टल जो है उसको रीफाइन करना है, उसको रीडेवलपमेंट रिक्रिस्टलाइजेशंस करना है, राइट। अब उसके आगे चलते हैं तो फिर एनेलिंग प्रोसेस में जो फोर्थ क्लासिफिकेशंस है, वो फोर्थ क्लासिफिकेशंस विच इज द फुल एनेलिंग प्रोसेस, द फुल एनेलिंग प्रोसेस विच इज परफॉर्म्स विच इज बेसिकली विच इज अबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। आप देखोगे तो जो ग्रीन कलर के रेडियम ग्रीन कलर के अंदर बॉक्स के अंदर फुल एनेलिंग प्रोसेस लिखा है, जो वो किस रेंज के ऊपर परफॉर्म होता है, यानी आप देखोगे तो वो 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो परफॉर्म हो रहा है, राइट। अब वो किस तरीके के स्टील के ऊपर परफॉर्म होता है, तो जिस स्टील के अंदर, यानी बेसिकली जो हाइपर टाइप ऑफ स्टील है जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 0.8 to 2% के रेंज के अंदर है, उसके अंदर जो है वो ये फुल एनेलिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ये इसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे ऑब्जेक्टिव हमने कल डिस्कस किए थे। फिर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली जो है वो अपर क्रिटिकल लाइन के ऊपर, यानी आप देखोगे तो 723 से लेके 910 के बीच जो है वो बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन जो है उसके बीच जो है वो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। फिर अब आपको ये क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज होगा कि सपोज कि नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग के बीच के जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो आप देखोगे कि एनेलिंग प्रोसेस जो है वो एनेलिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो टेम्परेचर रेंज आपको अब पता चल गया। अब बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आता है, कूलिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस आता है। एनेलिंग प्रोसेस के अंदर कल हमने स्टडी किया था कि आपका जो स्टील है उसका जो कूलिंग है वो रूम टेम्परेचर के अंदर जो है वो किया जाता है, राइट। उसको बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर खुला नहीं छोड़ा जाता। जबकि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के अंदर अब जो आपका स्टील है, आप जो भी प्रोसेस करोगे, सपोज आपने नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की, राइट, अब उसका जो कूलिंग प्रोसेस है वो कूलिंग प्रोसेस कैसे होगा, उसका जो कूलिंग है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर एयर कंडीशंस के अंदर, यानी आप उसको इस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने हीट ट्रीटमेंट किया है उसको आप हवा में खुले छोड़ के उसको जो है वो कूल करना, यानी इसका जो कूलिंग साइकिल होगा कंपेरेटिवली एनेलिंग प्रोसेस से वो फास्ट होगा, राइट। सो ये चीज़ जो है वो अभी हमने डिस्कस की, ये इसके पीछे का जो है वो राइटअप है। और क्या चीज़ कैसे इसके अंदर किस तरीके के हीटिंग से क्या जो बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं आपको फाइल जो है वो आपके साथ वो शेयर करूँगा, यानी आप उसको पढ़ सकते हैं, राइट। फिर हमने रिक्रिस्टलाइजेशन स्पीड डिस्कस करने की कोशिश की, रिक्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, राइट। During any of the cold working operations like the rolling, right, the material which has become as a harder, which is due to the work hardening operations, right. So but the loss of the ductility, they are lost that ductility. This implies that to continue the deformations of the materials that needs to be recrystallizations. Hence the recrystallization annealing is used as an intermediate steps of the deformation process, right. To achieve a sample is to be heated which is below the A1 line, right, which is below the A1 line, यानी आपको 723 के नीचे जो है वो करना है और उससे जो है वो रिक्रिस्टलाइजेशंस जो है वो आपको ऑब्जर्व होगा, राइट। इसके बाद आपके सेम तरीके के जो प्रोसेस है वो सेम तरीके की प्रोसेस है स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस। स्ट्रेस रिलीविंग में ऐसे ही जो है वो टेम्परेचर रेंज के ऊपर बेसिकली आपने कोई भी ऑपरेशन किया है, जैसे आपका वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, उस प्रोसेस के अंदर मशीनिंग हो गया, उस प्रोसेस के अंदर, राइट, जो रेसिड्यूल स्ट्रेसेस डेवलप हुए वो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको देखोगे तो यहाँ पे रेसिड्यूल स्ट्रेसेस कैसे कैसे डेवलप हो सकते वो लिखा है यहाँ पे, राइट। जैसे कि आपका डिफरेंशियल कूलिंग हो गया, कूलिंग जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर अगर हो रहा है तो फिर यहाँ पे रेसिड्यूल स्ट्रेसेस के अंदर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी फिर आपने शायद मशीनिंग प्रोसेस की होगी, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की होगी, मार्टिनसाइट फॉर्मेशंस अगर किया अंदर हुआ होगा, या फिर वेल्डिंग प्रोसेस की होगी, तो फिर स्ट्रेस रिलीव करने की ज़रूरत वहाँ पे रहती है, राइट। स्पेराडाइजिंग जो प्रोसेस थी वो कल हमने उसको डिस्कस करने की कोशिश की थी।
अभी जो हमें जो प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। अब नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मलाइजिंग द सैंपल इज हिट अबव द A3 लाइन, द A3 लाइन दैट इज़ द रेड लाइन, राइट, द A3 लाइन दैट इज़ द डेजिग्नेटेड एज ए रेड लाइन विच इज़ दी, आप देखोगे तो जिसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है विच इज़ लिमिटेड अप टू द 0.8%, राइट। अब और आप देखोगे तो ACM दैट इज़ द ग्रीन लाइन, सो ACM दैट इज़ द ग्रीन लाइन, वहाँ पे भी जो है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस तरीके के स्टील जिसके अंदर जो है वो 0.8% ही कार्बन वो वहाँ पे ही नॉर्मलाइजिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसके अबव यानी हाइपो और हाइपर दोनों स्टील के अंदर जो है वो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है, which is completing the austenization, right? The sample is then air cooled। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन किया है कि इसका जो कूलिंग है वो कहाँ पे करना है, एयर कूल्ड यानी एटमॉस्फेयर के अंदर इसका कूलिंग करना है, टू ऑब्टेन ए फाइन परलाइट। जैसे हम लोग एयर कूलिंग करेंगे तो स्टील के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज़ दी परलाइट, और जो उसके क्रिस्टल होंगे दैट इज़ दी फाइन पार्टिकल्स, राइट, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे आपको माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व होंगे। ए फाइन पार्टिकल्स, ए फाइन परलाइट्स हैज़ ए रीजनेबली गुड हार्डनेस एंड डक्टिलिटी, इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो हार्डनेस और डक्टिलिटी होती है। इन हाइपोयूटेक्टोइड स्टील यानी कि 0.8 तक, इन नॉर्मलाइजिंग इज डन इज 50 डिग्री सेल्सियस विच इज़ अबव द एनेलिंग प्रोसेस टेम्परेचर। इसके अंदर जो है जो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है इसके अंदर जो एनेलिंग प्रोसेस है वो किस रेंज में किया जाता है, यानी आपका जो एनेलिंग होता है और एनेलिंग से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर की रेंज में हाइपो के अंदर जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है। वेयर इन द केस ऑफ द हाइपर यूटेक्टोइड स्टील द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज डन विच इज अबव द ACM, राइट। हाइपर के अंदर जो है वो ACM लाइन के ऊपर परफॉर्म की जाती है। ड्यू टू द फास्टर कूलिंग ऑफ द सीमेंटाइट डज नॉट फॉर्म a continuous film along with the globulars, right? So a list of the use of the normalizing is listed below। normalizing जो है वो क्यों किया जा सकता है, यानी आप देखोगे कि हाइपो और हाइपर दोनों के कंडीशंस के अंदर, दोनों टाइप के स्टील के अंदर नॉर्मलाइजिंग जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, यानी आप नॉर्मलाइजिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के अंदर एनेलिंग प्रोसेस से 50 डिग्री एबोव यानी ऊपर की रेंज के ऊपर जो है वो एनेलिंग प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है, जबकि हाइपर यूटेक्टेड स्टील के अंदर जो है वो जो ACM लाइन है उस रेंज के ऊपर जो है वो वहाँ पर उस टेम्परेचर यानी 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिस स्टील के अंदर द रेंज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज़ बिटवीन द 0.8 to 2%, वहाँ तक जो है उसको हीट करके फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कूलिंग करके जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है वो दोनों हाइपो और हाइपर इस तरीके के स्टील के अंदर परफॉर्म की जाती है, राइट। अब इसके पर्पजेस क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, यानी जो पहला पर्पज है दैट इज़ द रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर विच इज़ प्रायर टू द हार्डनिंग। अगर हमें हार्डनिंग प्रोसेस करना है, राइट, तो उससे पहले उसके ग्रेन को रिफाइन करने पड़ेंगे, और उस ग्रेन को रिफाइन करने के लिए जो है वो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है, राइट। द फर्स्ट पर्पज विच इज़ टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर बिफोर द हार्डनिंग प्रोसेस। सेकेंड, टू हार्डन द स्टील स्लाइटली। अगर आपको स्टील को थोड़ा हार्डन करना है, हार्ड करना है, तो फिर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड, विच इज़ टू रिड्यूस द सेग्रीगेशंस इन द कास्टिंग और फोर्जिंग, टू रिड्यूस द सेग्रीगेशंस इन कास्टिंग और फोर्जिंग। कास्टिंग और फोर्जिंग के अंदर जो है वो सेग्रीगेशंस अगर होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो दिस आर द पर्पसेस ऑफ द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नाउ
we try to discuss the another heat treatment process which is the hardening process. अब hardening process क्यों किया जाता है, तो आप देखोगे तो अब now we are try to discuss about the hardening process. अब hardening process की आप range temperature range देखो तो that hardening process which is also performed in the same temperature range which is of the normalizing temperature range. आप देखोगे तो A3 लाइन और ACM लाइन जो जहाँ तक जो टेम्परेचर रेंज जो आपको दिखाती है, यानी आप जब हम हाइपर यूटेक्टेड स्टील की बात करेंगे तो वो हार्डनिंग प्रोसेस जो है उसको 910 से ऊपर हीट करने की वहाँ पे प्रोविजंस हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात करें हाइपो के लिए, तो हाइपो जो है उसमें हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 910 डिग्री सेल्सियस तक उसको परफॉर्म करके हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। सो बेसिकली द हार्डनिंग heat treatment process is performed which is above the lower critical temperatures, and the temperature highest temperature range which is limited to the upper critical temperature for the hypoeutectoid steel, where in the case of the hypereutectoid steel we can increase the temperature up to the maximum which is about the 1000 or 1050 degree Celsius. So the sample which is heated above the A3 line or ACM line to cause as a austenizations, इससे ऑस्टेनाइजेशंस होगा। ऑस्टेनाइजेशंस जो स्ट्रक्चर है वो स्टील के अंदर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। द सैंपल इज देन क्वेंच्ड, राइट, एट ए कूलिंग रेट विच इज़ हायर देन द क्रिटिकल कूलिंग रेट। अब इसके अंदर जो डिफरेंसेस है, या आप देखोगे कि एनलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग कूलिंग कैसे करते थे, तो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है उसका कूलिंग करते थे, जैसे कि एक क्लोज चैम्बर के अंदर उसका कूलिंग होता था। नॉर्मलाइजिंग के अंदर जैसे कूलिंग प्रोसेस चेंज हुई तो वहाँ पे जो कूलिंग था वो बेसिकली कहाँ पे कूलिंग हुआ था, तो कि ओपन एटमॉस्फेरिक एयर कंडीशंस के अंदर, यानी कि हवा में खुला छोड़ के उसको कूलिंग करना है। और यहाँ पे क्वेंचिंग से कूलिंग करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेंचिंग? आपके लिए जो क्वेंचिंग वर्ड है वो काफ़ी नया है, राइट। अब मैं आपको आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो क्वेंचिंग इज दैट द क्वेंचिंग प्रोसेस इज लाइक दैट द फास्ट कूलिंग। जैसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे कि आपके पास एक क्यूब है, राइट, उसको आपने हार्डनिंग प्रोसेस से उसको, जैसे दो स्क्वायर है, एक हाइपो है एक हाइपर तरीके का जो है वो एक क्यूब है, आपने दोनों को अलग अलग टेम्परेचर रेंज के ऊपर जो है वो हार्डनिंग प्रोसेस किया, राइट। अब जैसे ही वो गर्म हो गया तो उसको फर्नेस में से निकाल के क्वेंचिंग लिक्विड, द क्वेंचिंग लिक्विड इज लाइक द वाटर, लाइक द कोल्ड एयर, लाइक द ऑयल, लाइक द केरोसिन, राइट। ऐसे जो लिक्विड है, जैसे पानी हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, उसके अंदर जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, उसके अंदर उसका एक बात होगा, उसका एक कंटेनर होगा, उसके अंदर जो हीटेड ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हमने 910 डिग्री के ऊपर जो हमने हीट किया है, उसको फर्नेस से उसको पकड़ के हैंडल करके उसको सीधा उस बात में, जो क्वेंच बात है उसके अंदर उसको डुबो देना, राइट। जैसे मैं आपको एक तरीके से ये आपने काफ़ी ऑब्जर्व किया भी होगा कि कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है जिसको आप पानी में तुरंत, जो बहुत ज़्यादा गर्म है, जो पूरा लाल हो चुका है, उसको आप जैसे ही पानी के अंदर डाल दोगे, जैसे वो आपको एक छुम तरीके से आवाज़ हो कि वो इमीडिएटली उसका जो कूलिंग है वो फास्टर कूलिंग हो जाता है और वो इमीडिएट कूलिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। टू अवॉइड द नोज ऑफ द सीसीटी डायग्राम, राइट, जो हमने कल टीटीटी देखा था, वैसे ही सीसीटी डायग्राम, क्रिटिकल कूलिंग टेम्परेचर डायग्राम, जिसके अंदर एक एस तरीके का जो नोज होता था ना, नोज, राइट, एस का जो नोज होता है, जो अपना नोज जैसा जो वो शेप क्रिएट होता था, उस शेप जो है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ तक जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्वेंचिंग के अंदर, क्योंकि वो नोज शेप जो है वो एस कर्व जो है वो क्यों बन रहा है, क्योंकि उसका जो है वो स्लो कूलिंग हो रहा है, इसलिए वो एस तरीके का कूलिंग कर्व जो है वो बन रहा था। अब यहाँ पे कूलिंग जो है वो पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है, राइट, पूरी तरीके से हमने वहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे कूलिंग जो है वो इमीडिएट कूलिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे ये चेंजेस हो रहा है। द क्वेंचिंग प्रोसेस इज प्रोड्यूस ए रेसिडुअल स्ट्रेन्स। अब जैसे आप क्वेंचिंग प्रोसेस करोगे, उसका जो कूलिंग जो है वो क्वेंचिंग से करोगे, तो इसकी वजह से जो है वो क्वेंचिंग प्रोसेस के अंदर दैट इज दे आर प्रोड्यूसिंग द रेसिडुअल स्ट्रेन्स, वहाँ पे जो है वो रेसिडुअल स्ट्रेन्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए,
राइट, यानी एक थर्मल फेस ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएगा। आपने इमिडिएटली कूलिंग किया ना, क्योंकि आपने हीटिंग किया था तब तो धीरे धीरे हीटिंग किया था। अब आपने कूलिंग कैसे कर दिया, यानी फास्ट कूलिंग कर दिया। तो जैसे आपने फास्ट कूलिंग किया तो वहाँ पे जो चांसेस जो है वो डेवलप हो रहे थे कि रेसिडुअल स्ट्रेन्स जो है वो ये थर्मल इफेक्ट की वजह से वो डेवलप हो रहे हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशंस टू मार्टेनसाइट इज यूजुअली नॉट कंप्लीटेड and the sample will have some retained austenite। अब इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ होगी कि इसके अंदर जो मार्टेनसाइट है वो कंप्लीटली उसका ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होगा, राइट, उसके अंदर जो है वो उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होगा। जबकि यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी कि द सैंपल विल हैव सम रिटेन ऑस्टेनाइट। वो जो उसके जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स हो गए वो मार्टेनसाइट डेवलप होने की वजह से। आप देखोगे तो कल हमने वो जैसे डायग्राम हमने एस कर्व वाला डायग्राम लिखा था तो नीचे एक एमएस लाइन थी, राइट, दैट इज द मार्टेनस्टैटिक स्ट्रक्चर। वो मार्टेनस्टैटिक स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे कूलिंग करके जो अचीव होना चाहिए वो यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि वो जो फिर से जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर था ऑस्टेनाइट, वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में ही रह जाता है, राइट। द मार्टेनसाइट इज प्रोड्यूस्ड इज हार्ड एंड ब्रिटल। जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर स्टील का होता है वो एक तरीके से हार्ड एंड ब्रिटल होता है। एंड ए टेम्परिंग ऑपरेशन इज यूजुअली फॉलो दी हार्डनिंग। अब जैसे एक बार हार्डनिंग हो गया तो उसका जो स्टील रहेगा ना वो एक तरीके से वो ब्रिटल, यानी जैसे आप कोई किसी तरीके का फोर्स दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल है। तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए हार्डनिंग करने के बाद हमें टेम्परिंग प्रोसेस वहाँ पे करना, राइट। टेम्परिंग एक तरीके की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, टेम्परिंग करना जो है वो वहाँ पे कंपलसरी बन जाता है। दिस इज गिव ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्ट्रेंथ एंड टफनेस। जैसे ही हम लोग हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करेंगे तो आपका अब स्टील जो है उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी और वो काफ़ी तरीके से जो है वो टफ बन जाएगा। सो ये जो प्रोसेस थी दैट इज़ दी हार्डनिंग प्रोसेस। सो अगर हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में अगर और थोड़ा आगे स्टडी करने की कोशिश करें तो देर इज़ ए severity of the quench value of some typical quenching conditions. Before we proceed the further, we have to note that we have a variety of the quenching media at the disposals, right, with varying the degrees of the cooling effects. A severity of the quenching is indicated by the H factors with an ideal quench which is having the H value, right, जो H that is the heat, right, heat transfer equivalent that is designated as a H. So यहाँ पे आप देखो कि F that is designated as a H is equal to F upon K, where F which is integrated as a heat transfer factor, right, and K that is indicated as a thermal conductivity. सो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोसेस के अंदर जो किस तरीके से हम लोग क्वेंचिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्वेंचिंग जो है वो एयर है, फिर ऑयल क्वेंचिंग है। ऑयल क्वेंचिंग के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारे उसके अंदर जो टाइप्स है वेरिएबल्स है, स्लाइट एजिटेशंस, गुड एजिटेशंस, विगोरियस एजिटेशंस, राइट। देन द वाटर क्वेंचिंग, पानी के अंदर भिगो के कर सकते हैं, डुबा के कर सकते हैं। देन द ब्राइन क्वेंच, ब्राइन दैट इज द वाइन, ब्राइन सॉल्यूशंस जो होते हैं, राइट, ब्राइन दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल्ट वाटर। इसके अंदर मैं आपको आसानी से, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी डिस्कस करने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग सॉल्ट वाटर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज ए क्वेंचिंग मीडियम, राइट, एंड दैट इज़ द आइडियल क्वेंचिंग। सो इसके सारे जो है अगर आप ये काफ़ी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का जो है वो क्वेंचिंग मीडियम है वो यूज़ कर रहे हो, इसके हिसाब से जो है इसका हीट फैक्टर जो है वो क्रिएट होगा। अब हीट फैक्टर की ऊपर से उस कैलकुलेशन के बेस के ऊपर से जो है वहाँ पे जो है इसका कूलिंग रेट जो है वो कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा वो हम लोग जान सकते हैं। नाउ वी हैव टू नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ द क्वेंचिंग मीडियम द विगोरियस ऑफ द शेक is determined the severities of the quenching. So when a hot solid is put into the liquid medium, जैसे हम लोग कोई hot solid है उसको हम लोग liquid के अंदर put करेंगे, a gas bubble which is forms on the surface of the solid, right,
कुछ गैस बबल्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। एज ए गैस हैज़ ए पुअर कंडक्टिविटी, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती, उसके वो पास नहीं होने देता हीट को, राइट। दी क्वेंचिंग रेट इज़ रिड्यूस्ड, यानी हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो हमने सारे लिक्विड ही यूज़ किए हैं, राइट। किसी तरीके का गैस से हमने कूल करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि गैस के अंदर उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है और वो आपके जो कूलिंग रेट है वो उसको डिक्रीज कर रहा है, राइट। इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। विच इज़ प्रोवाइडिंग ए एजिटेशंस, right, is seeking the solid in the liquid, which is help in bringing the liquid medium in direct contact with the solid, thus improving the heat factors and the cooling rate. So the H value, which is the heat index, which is compared with the relative ability of the various media, gases and liquid, to cool a hot solid, right. A ideal quench is a conceptual idea with a heat transfer factor H. So this is all about the hardening process. hardening process के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे quenching medium यूज़ करके वहाँ पे fast cooling जो है वो किया जा सकता है। यानी आप इसके अंदर किस तरीके का जो है वो quenching process जो है वो यूज़ करोगे, इसके हिसाब से वो cooling rate जो है वो वहाँ पे डिसाइडेड होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने बेसिकली क्लासिफिकेशंस, फिर एनेलिंग प्रोसेस के जो 4 टाइप थे, फुल एनेलिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड स्पेरोडाइजिंग को थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश की, जो हमने ऑलरेडी कल भी किया था। फिर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश की, और नॉर्मलाइजिंग के साथ उसके बाद जो है वो हमने हार्डनिंग प्रोसेस जो है, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट जो है वो स्टडी करने की कोशिश की। और उसके साथ जो है वो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेंचिंग मीडियम उसको स्टडी करने की कोशिश की है। सो इसी जो सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूटी है, इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक में भी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसके हिसाब से, और वेटेज के हिसाब से भी इसका काफ़ी वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट जो है वो चैप्टर नॉर्मली 14 मार्क्स के अंदर जो है वो कवर होता है। यानी इस तरीके से हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो पीडीएफ में जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यानी ये पीडीएफ को आप यूज़ करके थोड़ा आप घर पे भी एक बार रिवाइज कर सकते हो मेरे लेक्चर के साथ। अगर ये टॉपिक के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टीज़ है, किसी चीज़ को समझ में नहीं आई है, तो फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। और ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स, मैं अभी काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं लिख रहे हैं, तो प्लीज़ राइट योर एनरोलमेंट नंबर विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो this is all about the heat treatment of the steel. Thank you so much for watching this video.